সরকারি চাকরি হবে সেখানে আমরা তাদের সংরক্ষিত করে দিচ্ছি। ত্রিপুরাতে সমস্ত 8টা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট আছে, 7টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে মহিলাদের দ্বারা, সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত আমরা 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 যে স্টেশন, পুলিশ স্টেশন, সেগুলো আমরা করেছি। যতগুলো পুলিশ স্টেশন আছে তার মধ্যে মহিলাদের যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য আমরা মে আই হেল্প ইউ করে সেখানে আমরা হেল্প ডেস্ক আমরা তৈরি করেছি। আমরা চাই মহিলারা যেন আমাদের ত্রিপুরাতে সুরক্ষিত থাকে। বন্ধুগণ, আপনারা খুশি হবেন, ত্রিপুরাতে কোন পার্টি আজ পর্যন্ত 12 জন, এই বছর 12 জন মহিলাকে এবার মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে ঘোষণা দিয়েছে। বন্ধুগণ, এর জন্য একটা হাততালি তো নিশ্চয়ই হওয়া উচিত, বড় একটা হাততালি হওয়া উচিত। কোনোদিন আর কোনো পার্টি আজ পর্যন্ত ত্রিপুরাতে করেনি। আমরা বন্ধুগণ, এর মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের কিভাবে ওদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখানে আমরা 7th পে কমিশন আমরা আমাদের ভিশন ডকুমেন্টে বলেছিলাম, সেটা আমরা করেছি। এর মধ্যে দেখুন, আমার পূর্বসূরি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি ছিলেন বিপ্লব কুমার দেব 3% দিয়ে উনি ঘোষণা করে গেছেন। আমি আসার পর সেখানে 5% আবার দিয়েছি। শুধু তাই না, এবার কিছুদিন আগে আমরা 12% দিয়েছি, অর্থাৎ 20% দিয়ে ঘোষণা করেছি। বন্ধুগণ, আমরা মানুষের সাথে চলতে চাই। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে সরকার স্বচ্ছতার সাথে চালাচ্ছেন, স্ক্যাম নেই, কোথাও স্ক্যাম নেই। আগে আমরা দেখতাম, এর আগে যে সরকার ছিল ইউপিএ সরকার, খালি স্ক্যাম স্ক্যাম স্ক্যাম, মানে এটা যেন একটা নর্মাল বিষয় যে সরকার চালালে স্ক্যাম করতে হবে। আমাদের ত্রিপুরা সরকারও প্রধানমন্ত্রীজি অনুসরণ করে নো স্ক্যাম, কোন কারোর ক্ষমতা নাই স্ক্যাম করার জন্য। আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা এখনো চালাচ্ছি, আগামী দিনও চালাবো, সেই দিশায় আমরা কাজ করি। বন্ধুগণ, আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে টেট উত্তীর্ণ সমস্ত যারা আমাদের উত্তীর্ণ যারা পাশ করেছিল তাদেরকে সবাইকে আমরা 3000-এর উপর আমরা চাকরি দিয়েছি। শুধু তাই নয়, জেআরবিটির রেজাল্ট আমরা বের করেছি, কোথাও অস্বচ্ছতার কোন রকম কেউ আঙুল দেখাতে পারবে না। আপনারা আর এর মধ্যে যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ 6100-র মতো আমরা সেই পোস্ট ক্রিয়েট করেছি, তার অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তারও প্রক্রিয়া চলছে, কোথাও কোনো সমস্যা নেই। 1000-এর উপরে কনস্টেবল নিয়োগ করেছি, সেটারও কোনো সমস্যা নেই। আগে কি হতো, যদি লাইনে আসেন আমার পার্টি করলে তবেই আপনার চাকরি পাবেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় বলেন স্বচ্ছতার সাথে করবেন। আমরা মেরিটের উপর ভিত্তি করে আমরা চাকরি দেব, মেরিটের উপরে যে যে জায়গার যে ধরনের মেরিটের প্রয়োজন তাকে আমরা নিয়োগ করব। আমরা সেই দলবাজি রাজনীতি আমরা করি না। বন্ধুগণ, অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয়, আজকে সেই কংগ্রেস সিপিএম একসাথে বেরিয়েছে। আপনাদের এলাকায় মাঝে মাঝে শুনি যে সেই কংগ্রেসের লাল পতাকা আর কংগ্রেসের যে ফ্ল্যাগ ছিল সেটা লাল পতাকা হয়ে গেছে, আর কংগ্রেসের যে ফ্ল্যাগ ছিল ত্রিরঙ্গা সেটা আপনার হয়ে গেছে লাল পতাকা। সব মিলে মিশে একাকার। একজনের কাঁধে একটা সেই সিপিএম এর ফ্ল্যাগ, আরেকজনের কাঁধে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ। অদ্ভুত একটা সিচুয়েশন। আপনাদের এখানে শুনি মাঝে মাঝে বের হয় জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। কালকে দেখলাম 10 জন লোক আসছিল। আমি বড় দুঃখ লাগলো যে ওদেরকে এই 2023-এর পর খুঁজেও পাবেন না, মাইক্রোস্কোপ লাগবে আমি নিশ্চিত। এখানে বরজলা কেন্দ্রে কোথাও আর সেই সিপিএম থাকবে না। বন্ধুগণ, আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। আমি এখনো সেই বন্ধুদের বলবো যে এখনো সময় আছে। সেই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমাদের যিনি চালক তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, এবং ত্রিপুরা সরকারের আমরা আরেকটা ইঞ্জিন, এবং তার বগিগুলো এখনো খালি আছে। আপনারা সময় আছে, দরজা খোলা আছে, তাড়াতাড়ি চলে আসুন, পরে কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে এই কংগ্রেসের কয়েকজন বন্ধু আমি অদ্ভুত লাগে, ওরা ওই মাঝে মাঝে ফুটবল খেলে যখন ওদের প্রতি বছর চেঞ্জ হয় দেখবেন, ওই এক ক্লাবের থেকে আরেক ক্লাবে যাওয়া, এরা তো প্রতি বছরে দেখে নাম পরিবর্তন করে। আজকে তৃণমূল, কালকে কংগ্রেস, তারপরে বিভিন্ন নামে বিজেপি, তারপরে আবার কংগ্রেস, এইরকম সারা জীবন করে গেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য নিজস্ব ব্যক্তি স্বার্থের জন্য এরা করছে। সত্যিই দুঃখ লাগে। আর অঙ্গভঙ্গির কথা বলে তো লাভই নেই। কালকে ওদের এক নেতাকে দেখলাম, সে ঢুল বাজাচ্ছে আর সামনে আমাদের ফটো নিয়ে নাচছে। আমি ওদেরকে বলবো এখনো যে আপনারা যে চোখ টিপে রাজনীতি করেন, অভিনয় করেন, চলে যান চলে যান। কোথায় যাবেন? বোম্বেতে অনেক পোস্ট খালি আছে নাট্যকারদের, ওখানে গেলে তাড়াতাড়ি আপনারা চান্স পেয়ে যাবেন। হয়ে গেছে, এখানে আর হবে না, এখানে আর চলবে না এগুলো।
বন্ধুগণ, আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা কোন মুখে আপনারা এই যাদেরকে অত্যাচার করেছে, তাদেরকে ধর্ষণ করেছে, মা বোনদের যাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে, নির্বাচন সন্ধান করেছে, খুন করেছে, তাদের বাড়িতে গিয়ে কি বলবেন? কাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন আপনারা? অদ্ভুত এক সিচুয়েশন। আমাদের জন্য ভালো হয়েছে, মানুষ ওদেরকে পরিত্যাগ করবে সারা জীবনের জন্য। অনেক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে এই যে অ্যালায়েন্স হয়েছে, আমি তো বলি আনহোলি অ্যালায়েন্স, এবং আমাদের পথ মসৃণ হয়েছে, আমাদের খুব ভালো হয়েছে এই অ্যালায়েন্স হয়েছে। বন্ধুগণ, আমরা শুধু এখানে ডেভেলপমেন্টের প্রতি কথা বলি, এরা এইসব নিয়ে ব্যস্ত আছে। আমাদের এখানে যে রেল গাড়ি, আমাদের রেল লাইন, ব্রড গেজের রেল লাইন সাবরুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমাদের রেল লাইন সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যায়, আমরা এই নিয়ে ব্যস্ত। রাজধানী এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, এইসব নিয়ে ব্যস্ত, ওরা অ্যালায়েন্স নিয়ে ব্যস্ত। এখানে মোথা নামে আরেকটা পার্টি অদ্ভুত বলছে যে এখানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। আগে তো বলুন, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের বাউন্ডারিটা কোন জায়গায়? মানচিত্রটা নিয়ে আসুন আগে। কোথায় আপনি শেষ করবেন? একবার বলছেন বাংলাদেশে, একবার বলছেন আসামে, একবার বলছেন মিজোরামে। আমি জানি না এখানে আসাম থেকে আমার মাননীয় বিধায়ক এবং অন্যান্য বন্ধুরা এসছেন, আপনাদের এখানে জায়গা দেবেন? ওদেরকে জায়গা দেবেন? অদ্ভুত এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, মানুষকে ভুল বুঝে, আমাদের জনজাতি যারা মা বোনেরা আছেন তাদেরকে ভুল বুঝে প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর এই লোকাল পার্টির উদ্ভব হয়। আমি এখনো বলছি যে ত্রিপুরাতে কোনো অবস্থায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা মানছি না, মানব না, কোনোদিন হতে দেব না। শুধু মুখের এই বাসে আজকেই শেষ, আর হবে না। আর বেশি দিন নাই বন্ধুগণ। ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সবার আসতে হবে। আমাদের কাছে অনেক নেতা আমাদের দলে এসেছিল, চলে গেছে, এখন আবার আসছে। আস্তে আস্তে করে সমস্ত ফ্ল্যাগ দেখবেন পড়ে আছে নিচে, আর ঝান্ডা উঁচা रहेगा किसका? ভারতীয় জনতা পার্টির এই পদ্ম ফুলের এই ফ্ল্যাগ এখানে উঠে আগামী নিশ্চিত যে আগামী দিন যে ইলেকশন, আমাদের সাধারণ বিধানসভার যে ইলেকশন হচ্ছে, এখানে দুজন এখানে যার জন্য বিশেষ করে আজকের এই এখানে নির্বাচনী সভা, আমাদের ডক্টর দিলীপ কুমার দাস, আমার বিশেষ বন্ধু, একজন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, গাইনোকোলজিস্ট, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে ছিলেন, আমরা একসাথে কাজ করেছি। ওনাকে আপনারা 16 তারিখ গিয়ে আপনারা তো দেবেন, অন্যদেরকেও বলবেন পদ্ম চিহ্নে যেন ভোট দেয় এবং বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেন। এখানে যারা বামুটিয়া থেকে এখানে এসছেন, বা আপনারা যারা বন্ধু বান্ধবরা আছেন, বামুটিয়া গিয়ে বলবেন যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যিনি এখানে এবার মনোনীত প্রার্থী, আমাদের বিধায়ক কৃষ্ণবাবুকেও, কৃষ্ণধন দাসকেও যেন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজনাথ সিং থেকে শুরু করে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ভেট করতে পারি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। একটি বিশেষ সংবাদ রয়েছে। আপনারা সকলে জানেন সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের যে অশুভ জোট, এই জোটকে মেনে নিতে পারেননি দুইজন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা। একজন হলো দিলীপ কুমার ঘোষ, আরেকজন শ্রী সুশীল রায়। উনি আজ কংগ্রেসের সমস্ত পদ থেকে এবং কংগ্রেস থেকে ত্যাগ করে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আদরণীয় শ্রী রাজনাথ সিংজির হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। দিলীপ কুমার ঘোষ 1984 সালে এনএসইউ-এর সভাপতি ছিলেন, 1986 সালে জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন ইয়ুথ কংগ্রেসের, এবং 1995 সালে ইয়ুথ কংগ্রেস অবজারভার ছিলেন মিজোরামের। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ওবিসি চেয়ারম্যান, এবং 2018 সালে মোহনপুর থেকে কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট ছিলেন সে দিলীপ কুমার ঘোষ। আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছেন। আরেকজন শ্রী সুশীল রায়, রিটায়ার্ড টিচার এবং একনিষ্ঠ কংগ্রেস কার্যকর্তা এবং একজন সমাজসেবী। উনিও এই কংগ্রেস সিপিএম এর যে অশুভ জোট, এই জোটকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে উন্নয়ন, এই উন্নয়ন উনি সামিল হচ্ছেন। উনি আজ
বিজেপিতে যোগদান করছেন। ওনাকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারের পক্ষ থেকে হার্দিক স্বাগতম এবং ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আমি আজকের যিনি প্রধান বক্তা তথা ভারতবর্ষের যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি পূর্ব রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ শ্রী রাজনাথ সিং জি মহোদয়কে আহ্বান রাখবো আপনাদের সকলকে সম্বোধন করার জন্য। त्रिपुरा राज्य की डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, निहायत सज्जन चीफ मिनिस्टर, निहायत शरीफ चीफ मिनिस्टर, और जो कहते हैं वो करने वाले चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर मानिक शाह जी, डॉक्टर दिलीप दास जी, जो आपके विधायक भी रहे हैं और इस बार भी आपके प्रत्याशी हैं, श्री कृष्णधन दास जी एमएलए। कृष्णधन दास जी का आज बोलने का जो मैं तरीका देखा, पहली बार किसी प्रत्याशी को इस तरीके से बोलने का और जनता को संबोधित करने का तौर तरीका देखा है। नवेंदु भट्टाचार्य, श्री मुकुल राय, श्री अशित राय, श्री विजय कुमार गुप्ता, श्री कुशिन राय एमएलए असम, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, मैं कल से इस त्रिपुरा में मेरा पहली बार आना नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 20 वर्षों से लगातार मैं त्रिपुरा में आ रहा हूं। त्रिपुरा के सभी अधिकांश क्षेत्रों में जाना मेरा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब मैं त्रिपुरा आया, यह त्रिपुरा मुझे कुछ बदला सा लगता है। आज के कई वर्षों पहले जब मैं त्रिपुरा में आया था, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। गांव में यदि बिजली थी तो लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। सड़कें थी टूटी फूटी थी, कहीं सड़कों में गड्ढे तो कहीं ऐसा भी लगता था कि गड्ढों में सड़कें। अजीबोगरीब हालात थे। बिजली के बारे में गांव की बात तो छोड़िए, अगरतला में भी बिजली कभी आती थी कभी चली जाती थी। वह त्रिपुरा भी मैंने देखा है। और कल जब मैं त्रिपुरा की सड़कों से मैं गुजर रहा था, डॉक्टर मानिक शाह जी भी हमारे साथ थे। यहां की सफाई, यहां के सड़कों को देखने के बाद मैंने कहा कि मानिक शाह जी, त्रिपुरा मुझे अब बदला बदला सा लग रहा है, लगता है कोई अच्छी गवर्नमेंट अब त्रिपुरा में आ गई है। गुड गवर्नेंस देने वाली, अच्छी सरकार देने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, स्वाभाविक रूप से उसको परिवर्तन दिखने लगता है। और वह परिवर्तन मैं बहन भाइयों में कह सकता हूं कि मुझे त्रिपुरा में दिख रहा है। पहले वाली अब वो स्थिति नहीं है। त्रिपुरा का कैसे विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, इसके बारे में बहुत विस्तार में आपको डॉक्टर मानिक शाह जी ने बताया है। अब तो मैं देख रहा हूं कि सड़कों का निर्माण जितनी तेजी के साथ हो रहा है, केवल त्रिपुरा नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है पूरे नॉर्थ ईस्ट हम ऐसी पक्की सड़कों का निर्माण करेंगे जो केवल नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि हमारी जो आसियान कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज तक हमारी सड़कें जाएंगी, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग, जिसमें कि त्रिपुरा भी शामिल है, अपना कोई सामान, अपना कोई प्रोडक्ट यदि दुनिया के दूसरे देशों को भी भेजना चाहते हैं तो बहुत सहज और सरल तरीके से दुनिया के दूसरे देशों को भी भेज सकें। कनेक्टिविटी से कितना बड़ा लाभ होता है।
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहनों भाइयों, जिस भी क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस देश में कनेक्टिविटी माने आवागमन की सुविधा यदि बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र के, उस राज्य के, उस देश के विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री ने आने के बाद यही फैसला किया, हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, चाहे वह हाईवेज हो, चाहे वह रेलवेज हो, चाहे वो इंटरनेट वेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो। आपने देखा होगा कि अब इंटरनेट की सुविधा त्रिपुरा में सबको उपलब्ध हो गई। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया त्रिपुरा में। आज के कुछ वर्षों पहले तो कोई यह कल्पना भी नहीं करता था कि त्रिपुरा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। अब यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हो गई। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि सचमुच हीरा इस नॉर्थ ईस्ट को मिला है। हीरा मतलब HIRA, यस से हाईवे, आई से इंटरनेट वे, आर से रोडवे और रेलवे और ए से एयर। नॉर्थ ईस्ट को यह हीरा मिल गया है, यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और बहनों भाइयों, वह भी मैंने त्रिपुरा देखा है जबकि उग्रवाद, आतंकवाद के कारण एक दहशत का माहौल। शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। इस त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में जाकर वह समय भी हमने देखा है। लेकिन आज कोई भी माता लाल यानी किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा अथवा उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, तब उसका स्थान उसका घर नहीं होगा बल्कि अब सरकार की जेल होगी। ऐसी सरकार की जरूरत है। हिंसा को, उग्रवाद को, आतंकवाद को हमारी सरकार किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दे सकती। किसी भी राज्य अथवा किसी देश के विकास की पहली शर्त होती है उस राज्य अथवा देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का दुरुस्त होना, कानून और व्यवस्था के हालात का ठीक होना। और जितनी मुझे जानकारी है मैं कह सकता हूं कि त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था के हालात पहले से बहनों भाइयों बेहतर है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में हम लोगों ने नारा दिया था, चलो पलटाई। कल मुझसे एक प्रेस के मित्र पूछ रहे थे कि तो आप 2018 में आप लोगों ने नारा दिया था चलो पलटाई, तो त्रिपुरा की जनता ने तो उस समय की CPM सरकार को पलट दिया, आपकी सरकार बना दी। इस बार यदि आपको नारा देना होगा तो आप क्या दें? तो मैंने कहा कि 2018 में हमने नारा दिया था चलो पलटाई, तो त्रिपुरा की जनता ने CPM की सरकार को पलट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना दिया। 5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली है, चाहे वो विप्लव देव जी हों, चाहे आज डॉक्टर मानिक शाह जी हों, जिस तरीके से सरकार चलाई है, इसे ही सुशासन कहते हैं, इसे ही गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो मैंने कहा उस समय नारा दिया था चलो पलटाई, आज मैं नारा दे रहा हूं चलो सुशासन को मजबूत बनाइए और अधिक बेहतर गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है, इस संकल्प को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और डॉक्टर मानिक शाह जैसा मुख्यमंत्री, विप्लव दास ने भी बहुत अच्छा काम किया था। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया कि विप्लव दास यंग हैं, डायनेमिक हैं, चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करके उन्होंने दिखा दिया है कि कैसे सरकार चलाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें बराबर नए यंग ब्लड की, नौजवानों की जरूरत पड़ती है देश में। अब भाई तुम चलो केंद्र में, अब यहां की जिम्मेदारी डॉक्टर मानिक शाह की संभाली। और आपने देखा कि संसद के सर्वोच्च सदन में विप्लव दास को, इस त्रिपुरा के मिट्टी के लाल विप्लव दास को उठाकर राज्यसभा का सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। और यहां के शासन की बात दो, डॉक्टर मानिक शाह जैसे निहायत सज्जन, शरीफ, पढ़े लिखे, डूअर करने वाले
व्यक्ति के हाथों में शासन की बागडोर सौंप दी। दूसरी राजनीतिक पार्टियों में इतने सहज और सरल तरीके से संभव नहीं। दूसरी राजनीतिक पार्टी में यह करना हो तो वह पार्टी टूट जाएगी, खंड खंड हो जाएगी। आपने देखा यहां पर सीपीएम का एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो बन गया, उसको बदलना किसी के बस का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अनुशासित पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी, इसलिए यह संभव हुआ। और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है देश में, त्रिपुरा के लिए क्या किया है, यानी त्रिपुरा के लिए अथवा देश के लिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, यह हमारा फर्ज था। आपने यह जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पर दी थी सरकार बनाने की, हम उस फर्ज को पूरा कर रहे हैं। आपके प्रति शासन में होने के कारण जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर रहे हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया आपके। आज हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उसकी भूख के कारण मौत हो गई। 2014 के पहले समाचार पत्रों में इस प्रकार की भी घटनाएं सुनने को मिलती थी, भोजन न मिलने के कारण फला परिवार के 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। बहनों भाइयों, अब एक भी घटना हिंदुस्तान में जी आपको सुनने को अथवा देखने को मिलेगी। इतना बड़ा देश, जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश होने जा रहा है हमारा यह भारत। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दुनिया में ही कहीं मुहैया कराया जा रहा है, तब केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में मुहैया कराया जा रहा है। गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों की माताएं और बहनें तो कभी कल्पना नहीं करती थी कि हमारे भी घर में कुकिंग गैस से, खाना बनाने वाले गैस से खाना पकेगा, गैस सिलेंडर हमारे घर में आएगा, इसी कभी कल्पना नहीं करती। मुफ्त में गैस सिलेंडर को मुहैया कराना हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। कई ऐसे आवास, बड़ी संख्या में लोग इसी अगरतला में चले जाते आप, तो अगरतला में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि छोटे छोटे टेंट लगाकर, मैंने बिल्कुल बोरे से, गंदे कपड़ों से बनाकर लोग सड़कों के किनारे पड़े रहते। हमारी सरकार ने फैसला किया, जो भारत का नागरिक है, जो भारत माता की कोख से ही पैदा हुआ है, अब वो खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, बल्कि सरकार उसके लिए पक्का मकान मुहैया कराएगी। और यह काम करना की सरकार ने हिंदुस्तान में प्रारंभ किया है, हमारी सरकार ने। यह हमारी सब कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है मेरे बहन भाई। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को आप समझते हैं, इसीलिए 2018 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी यहां जीरो थी, उसको 2018 में भारतीय जनता पार्टी को आपने हीरो बना दिया। सरकार चलाने के तरीके का प्रश्न जहां तक है, गवर्नेंस, यह मैं नहीं कह रहा। हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी, दुनिया की बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं, इंटरनेशनल एजेंसी हैं, जो कि भिन्न भिन्न देशों में जो सरकारें चल रही हैं, वह सरकारें कैसी चल रही हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इसका मूल्यांकन करती है। तो वह इंटरनेशनल एजेंसी ने जो मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन के आधार पर यह कहा है कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली, यानी गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो हमारी और आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन्हें एजेंसियों ने कहा। यह हमारी पार्टी ऐसी बात है। मैं उदाहरण देना चाहूं तो कई दे सकता हूं। आप यहां पर आपने बहुत सरकारों में सीपीएम सरकार भी देख लिया, कांग्रेस की सरकार भी देख लिया, ये कैसी सरकारें चलाती और हम कैसी सरकारें चलाते। अब है ना भाइयों, यहां तक सीपीएम और कांग्रेस का सवाल है। अब दोनों ने मान लिया है हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, इसलिए दोनों अब एक दूसरे से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर और चुनाव लड़ना चाहते हैं।
यानी दोनों कैसी पार्टियां हैं, कितना मिलकर चलेंगी, कब तक चलेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कब तक चलेगी? मैं तो कहता हूं कि एक बांसी है, एक पार्टी बांसी है और एक सितारा है। बांसी यानी बंसी, सितारा माने सितार। एक बांसी ऐसी है जिसमें कई छेद हो गए हैं, राग निकलने की बात तो दूर, अब उसमें आवाज भी नहीं। एक सितारा तो ऐसा हो गया है कि इसके तार ही टूट गए हैं, अब उसमें भी राग की बात तो दूर, आवाज निकलना संभव नहीं है। ये हालत हो गई है सीपीएम और कांग्रेस की। अब वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंक, यहां के हमारे सरकारी कर्मचारियों को कहते हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। मैं सीपीएम के लोगों से पूछना चाहता हूं, केरल में आपकी सरकार है, आपने केरल में ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू किया है? सच्चाई यह है कि हेल्दी पॉलिटिक्स, स्वस्थ राजनीति से कहते हैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर जो राजनीति करनी है। और बहनों भाइयों, स्वस्थ राजनीति वो होती है जो कि जनता में की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति जो की जाती है वही जो है हेल्दी पॉलिटिक्स होती है, वही स्वस्थ राजनीति होती है, वही राजनीति है। आज तमाशा बना दिया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं कि हमारी पार्टी केंद्र में काम कर रही है, उसके भी कामकाज को देखा है। सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी। पहले भारत को लोग मानते थे भारत का प्योर देश, सारी दुनिया यह मानती है कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है, सारी दुनिया मानती है। आपने देखा पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत में घुस आए, हमारे सेना के जवानों पर छुपकर कायराना हमला किया, हमारे कुछ जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर मिनटों में फैसला कर दिया, और उसके बाद हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। और हमने सारे विश्व को संदेश दे दिया, सारे विश्व को संदेश दे दिया कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर है। अब हमारा भारत यह कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत का कद अब दुनिया में बहुत ही ऊंचा हो गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूक्रेन में हमारे हजारों बच्चे भारत के रहने वाले जो मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यूक्रेन में, वहां से वो निकलना चाहते थे क्योंकि वहां पर बमबारी हो रही, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे। और यहां जो उनके माता पिता थे भारत में, वो कहते थे प्रधानमंत्री जी जल्दी से हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। सवाल यह था बमबाजी बंद हो तब ना। मेरे भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की, जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे लगभग 22-23 हजार यहां के नौजवान यूक्रेन से आए। यह भारत, दुनिया अब धीरे धीरे भारत को एक शक्तिशाली देश, ताकतवर देश, और कभी यह भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, विश्व गुरु के पद पर फिर से भारत बैठ सकता है। यह विश्वास सारी दुनिया में लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। और दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे भारत की होगी। ऐसा भारत बना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं मेरे भाइयों
कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाना चाहती है जिसमें कि कोई भूखा न सोए, ऐसा कोई व्यक्ति शेष न बचे जिसके हाथ यदि काम करना चाहता है तो उसके हाथों को काम न मिल जाए, सभी सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जी सके, ऐसे भारत का निर्माण करना चाहिए। भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, इस भारत को हम फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं। बैठेगा भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर। इस विश्वास के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। विकास यहां क्या हुआ है, कितना हुआ है, मैं समझता हूं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और डॉक्टर मालिक साहब जी ने बहुत विस्तार में सारी चीजें आपके सामने रख दी है, इसलिए उन सब सारी चीजों की यहां पर इस समय चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल से मैं आया हूं, ये हमारी चौथी सार्वजनिक सभा है जिसको कि मैं संबोधित कर रहा हूं। मैं लोगों से पूछ रहा था क्या हालात है यहां, तो लोगों ने बतलाया था बात तो पक्की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुछ अपने प्रेस के मित्रों से भी पूछा, वो लोग भी मिले, कहा साहब चिंता मत करिए, दुविधा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पक्का है। मैंने कहा कितना मिलेगा? कहा इतना मानकर चलिए कि पिछली बार जितना मिला था उससे कहीं ज्यादा मिलने जा रहा है। और मैंने भाइयों कल की एक सभा में मैंने कहा था कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें यदि प्राप्त होंगी, 50 सीटें यदि प्राप्त होती हैं, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा जनता का आभार व्यक्त करने के लिए स्वयं त्रिपुरा की एक बड़ी सभा में वो यहां पर मौजूद हों, आप सभी लोगों के सामने मैं उनसे आग्रह करूं। इसलिए इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं, और मैं आश्वस्त हूं कि हमारे जो भी प्रत्याशी यहां पर मंच पर विराजमान हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमारे दिलीप दास जी और श्री कृष्णधन दास जी, दोनों अच्छे वक्ता हैं, मैंने देखा है। और हमारे कृष्णधन दास जी तो या शरीर से भी ठीक ठाक, आप पढ़े लिखे हमारे योग्य डॉक्टर दिलीप दास जी, अब इन दोनों लोगों को भारी मतों से दिया दिलाइए। ये बात मैं आश्वस्त होकर जाऊं, एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूं कि आप लोग इताने के मूड में। बहुत बहुत धन्यवाद।